everybody. Today I am going to tell you about mirror, जिसे कि हिंदी में शीशा भी कहा जाता है। आज इसके विषय में कुछ बात हो जाए। तो बात होने से पहले जरा एक बहुत ही प्यारा गाना है जो सभी ने सुना होगा, सॉन्ग जिसे बोलते हैं शीशा हो या दिल लाके टूट जाता है टूट जाता है। तो ये गाना जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत गाना है। और किसी ने इतना प्यारा गाना जब शीशे पे ऊपर बनाया था तो मैंने सोचा चलो भाई शीशे के ऊपर एक थोड़ा सा इन्वेंशन भी हो जाए, क्या क्या शीशे में क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या होता है। और किसी ने बहुत ही खूबसूरत शीशे पे एक कविता लिखी है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। शीशे की दुनिया में एक अनजाना सा चेहरा, रूप को भी व्यक्ति देता शीशा है यहाँ। सच्चाई छिपी है इस तरल रूप में, चेहरे की कहानियाँ कहाँ तक असली। आवाज नहीं सिर्फ छाया है प्रतिबिंब, कभी रूप में छिपा रहता है सच कठोर। दिखावटी यहाँ धोखा, सच्चाई का खोखलापन। शीशे की ये दुनिया छिपी रूप में छिपा हुआ है। धीरे धीरे समझता हूँ क्या मैं शीशे का हिस्सा हूँ। अपनी छवि के पीछे असली रंग छुपा है यहाँ। कवर के पीछे सत्य या झूठ छिपा है यहाँ। शीशे की ये दुनिया अनजान है कितनी। अब जब मैं देखती हूँ शीशे के बिना अपना रूप, तो सच्चाई का आईना यहाँ है या नहीं। शीशा शीशे की दुनिया में छिपा है अनजान। अब कवर के पीछे क्या सच्चाई है इसकी पहचान नहीं है। अब ये तो हो गई इसके शीशे पे प्यारी सी कविता। अब शीशा यानी मिरर पे एक बहुत ही प्यारी सी पोयम है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। A glass mirror hang upon the wall, capturing moments, large and small. It seems the smile, the tears that fall, the, the feast of choice, the sorrow of toil, and in the polished sheet. It does not confine the secret whispered by its shade. Oh mirror, fair, what do you see? Your depth, what mysterious be? And you hold the truth, yet never speak, a silent witness, calm and meek. You show your truth, we often hide our fact, our beauty side by side. A window to our soul, refined in mirror's glass. We see our pain. Yet, in your gaze, we find release, a moment peace, a sweet capture for thoughts you show us stark and clear. You also hold your hopes so dear. Oh, hang upon the wall, oh mirror bright, muselet, both day and night. For in your glass we find our grace, reflecting back our human face. A glass mirror. Do you know this the poem which who has written? I don't know, but it is very beautiful poem. अब ग्लास के विषय में मीन्स मिरर के विषय में कुछ बात हो जाए, आगे कुछ बात हो जाए, तो मैं जरा इसके विषय में कुछ बात करती हूँ। वो इस प्रकार है। A glass mirror is a reflective reflection,
typically made from a made from the sheet of the glass, and that has been coated on its back with a reflective material, usually silver or aluminum, and its composition means the base material is usually float glass, which is made by the floating molten glass on a bed of the molten melted to create a smooth surface. The glass use is usually low in iron content to ensure maximum clarity and the minimum tinniness. And reflection coating. A reflection coating means the back surface of the glass is coated with a thin layer of metal. Traditionally, it is silver, otherwise, which provide the reflection properties. And the aluminum is also commonly used, and today due to the lower cost and the adhere of the reflectives according to their price. Protective layers to protect the reflection coating for the damage. A layer of paint or other protective material is applied over the metal coated. And the other, this also helps to prevent oxidation that of the reflective material. And glass are also means mirror are also comes in very types. Mean it has more types which I want to share with you. This means flat mirrors. Flat mirror means standard mirrors that provide a clear, undistortable reflection. And the other is a left tipped mirror. Mirror with the edge cut at an angle and the often use of the decorative purpose. And the safety mirror, these are the made with the safety backing to the prevent shelter. And the two-way mirrors means these are a particular reflective and the particular transparent and the allowing viewing and the form one side and the mirror reflection from the other side. And other point also come, that is the qualities and the uses. Means mirror usually is determined by their factors, means like flatness and the smoothness and the reflective. The high quality mirrors have a precious reflective coating and the minimal deflecting. So they are used in a variety of applications that including home decoration and the bathroom, dressing room, and the scientific instruments, glass and the telescope and the mobility and the real views mirror also come in these categories. So you can see that if you are driving a car, so you can observe that you have a two side mirror and the upper also one mirror for a back views, and usually mirrors are available in each and every homes for seeing their faces in the morning time. Maybe who are a person, they are not seeing first of all mirror in their bathroom or any place in the bedroom,
So mirror is very familiar, right? Mirror is very familiar, which everybody use in their daily life. So installations that it maintenance, it required maintenance means mirror are typically installed by the dharik in say particular wall, and the mirror are placed within a frame. Why? Because it needs frame. On that frame it looks beautiful, and without frame it doesn't look beautiful. So that it shapes, for its shapes it required a frame. So frames are also come in very varieties. Maybe it is a mechanical, means golden color, a silver color metal, or any stones type metal, or a common metal, means it is a mixture of all the metals, or a tin type. And mirrors also come in there, wooden also, wooden frame also mirror comes. And somewhere I saw that for a decoration purpose also they use one wall, means from the top to the bottom one wall it is made of by the mirror. Why? Because if they use a one wall in mirror, so that room will look very big. It is a reflection of the room, so anybody can see and they can feel it. Yeah, this room is not very small. Why? Because it is a reflection of the room. So some places I saw that they use a one full wall in mirror, so that it looks good also, and it gives a beautiful views, and beautiful decorating pieces like that they use it. अब मैं एक छोटी सी बात करूँगी, बहुत से मंदिरों में भी मैंने देखा है मिरर लगा होता है, लेकिन जो रियल में मैंने जो मिरर का यूज़ देखा मंदिर में, उसे उस मंदिर का ही नाम था ग्लास मंदिर। ग्लास मंदिर में उस मंदिर को ही बोलते थे ग्लास मंदिर। और वो जो मंदिर था वो जैनी लोगों का था। जैनी लोग जो होते हैं, महावीर की पूजा करते हैं जो जैनी लोग होते हैं, तो वो मंदिर जो था वो जैनी लोगों का था। तो वो मंदिर मैं जो छोटी थी तो मैंने कानपुर में देखा था, वो बिरहाना रोड पे वो मंदिर बना था, जैन मंदिर। और जब पापा मम्मी हम लोग सब फैमिली विद फैमिली वहाँ गए थे, जब मैंने देखा तो रियली मैं तो देखती रह गई थी वो जैन मंदिर। वो उसे ग्लास का, स्पेशली उसको बोलते थे ग्लास का मंदिर। तो चारों तरफ द पीसेस ऑफ ग्लास, मीन्स स्मॉल स्मॉल पीसेस दे यूज्ड इन दैट मंदिर, and it is looking, really it is looking awesome that beautiful मंदिर। तो चारों तरफ ग्लास ही ग्लास के पीसेस को इस तरीके से अरेंज किया गया था कि वो मंदिर में जब सनलाइट पड़ता था तो वो मंदिर पूरा चमकता था, कि पूरे मंदिर चमकता था, क्योंकि वो ग्लास का बना हुआ था। और उसमें जब सनलाइट पड़ता था तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है सनलाइट का, वो पूरे मंदिर में वो सनलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा लगता था कि वो मंदिर में चारों तरफ लाइट ही लाइट है और जगमगाता रहता था वो मंदिर। तो इसलिए वो मंदिर बहुत ही फेमस था कानपुर का, और जो आज भी है वो जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और उसे बहुत लोग ग्लास का मंदिर भी बोलते हैं। तो मैं ये बात बताते बताते उस मंदिर तक चली गई, क्योंकि वो चीज़ मैंने देखी थी कि अभी इंटीरियर डेकोरेशन के विषय में बात कर रही थी, तो मुझे वो चीज़ तुरंत याद आ गया कि वैसा एक मंदिर भी बना हुआ है कि जो ग्लास से बना हुआ है। अब बात करते हैं इसकी historical significance. So mirror have been used since that ancient time, and with the early, means it is made of that either polished and obligate that material, and the glass
glass mirror is because the widespread of that 16th century, and when the glass maker and the prefer the process of the backing glass with the reflective metal coating, and the glass are the is the in daily life, and it provides the reflection of the our face and body like that. The point is the both function and is beneath in this various environment. Their reproduction involve a decline that a balance of the material and the craftsmanship to the achieve the desire and the reflective qualities and durability also. अब मिरर के बारे में क्या बताया जाए, तो मिरर जो है, अब कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वो बहुत ही डिलिकेट होती है, मीन्स बहुत ही नाजुक होती है। अब मिरर को भी ये लगाना होता है तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर स्पेस बनाया जाता है, वहाँ लगाया जाता है। यदि फ्रेम में मिरर है तो उसका टेक केयर भी किया जाता है, क्योंकि मिरर में जरा से भी कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ से कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ बाय बच्चों के हाथों से स्ट्रॉन्ग चीज़ उसमें पर चली गई या थ्रो कर दिया तो मिरर तुरंत टूट जाता है, क्योंकि वो ग्लास का बना होता है। तो मिरर जो है उसका भी ध्यान देना भी ज़रूरी है। अब देखिए डाइनिंग टेबल हमारी है वो मिरर से बनी, वो ग्लास से बनी हुई है, तो इसका ध्यान देना तो ज़रूरी होता है कि कोई हैवी चीज़ ना गिर जाए या कोई बच्चा आकर के कुछ ना फेंक दे, तो ये सब ध्यान देना होता है। तो वही मेरा पॉइंट तो केवल इतना है कि कोई भी चीज़ मीन्स, अब देखिए सोना चांदी हीरा मोती लोग खरीद लेते हैं, उसका भी ध्यान देते हैं, लेकिन मिरर तो बहुत ही तुच्छ चीज़ है, मीन्स बहुत ही चीप रेट में आने वाली चीज़ है मिरर, जिसे ग्लास भी बोलते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट इतना है कि ये चीप एंड लोवेस्ट प्राइस की चीज़ जो है, फिर भी ये भी अटेंशन मीन्स ये भी बहुत ही रिक्वायर मीन्स बहुत ही केयर मांगती है। यदि इसकी केयर नहीं हो तो ये आपके फेसेस को गंदा भी दिखा सकती है ड्यू टू लेयर ऑफ द डस्ट ऑन द मिरर। यदि मिरर के ऊपर में लेयर ऑफ डस्ट होगी तो वो आपके चेहरे को गंदा दिखाएगी। तो मिरर को हमेशा क्लीन भी करना चाहिए, जिससे कि यदि मिरर में आप चेहरा देख रहे हैं, यदि मिरर क्लीन नहीं है, वो डस्ट ऑफ द लेयर ऑन द मिरर, तो चेहरा क्या होगा, चेहरा गंदा दिखता है। तो मिरर को क्लीन करना भी ज़रूरी होता है। तो ये कहा जाता है कोई भी चीज़ जैसे साफ सुथरी करके रखा जाता है, क्लीन करके रखा जाता है, बहुत संभाल के रखा जाता है। अब तो मैं ये बोल रही हूँ, ये तो मिरर की बात हो गई, तो चीप एंड वेरी लो इन कास्ट और कोई भी इतना वैल्यू नहीं होता है। लेकिन मैं तो एक बहुत ही छोटी छोटी पॉइंट्स को ले करके मैं अपनी बातें करती हूँ। तो ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है मिरर, जो कि सब लोग डेली ही मिरर में अपना चेहरा देखते हो, बहुत ही तुच्छ, बहुत ही कम रेट में आने वाली चीज़ है। लेकिन मेरा पॉइंट इतना है कि लेकिन फिर भी वो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है हमारी डेली लाइफ। वाई बिकॉज कि यदि हमारी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती तो लोग डेली जा कर के अपना चेहरा मिरर में क्यों देखते हैं। अब यही पॉइंट होता है कि इसकी वैल्यू, कि मतलब इतने तुच्छ रेट में, इतने लो प्राइस में आया हुआ मिरर भी अपनी इम्पोर्टेंस बना के रखता है कि इंसान आ कर के चेहरा डेली देखेगा ही देखेगा अपना। तो ये होती है बात, ये होती है क्वालिटी, और ये होती है एक इमेज हर एक चीज़ की। तो ये तो बात हुई एक छोटे से मिरर की। तो ऐसे ही हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, कि जो वो वैल्यू होती है वो वैल्यूबल होती है, वैल्यूबल होती है तो वो इंसान जानता है उसकी वैल्यू क्या है। अब थोड़ी सी बात कर लूँ जरा, बिल्कुल सही बात हुई है। जब ग्लास मिरर एक चमकदार सतह है और जो आम तौर पर कांच की एक सीट से
बनाया जाता है। अब जिसके पीछे एक चमकदार सामग्री जो लगी होती है, जो लेप लगा होता है, वो आमतौर पर सिल्वर या एल्युमिनियम का बना होता है। और यहाँ कुछ जैसे मैं बता रही हूँ कि इसकी जो संरचना है, मीन्स स्ट्रक्चर जो है, आमतौर पर इसका जो आधारिक जो द्रव होता है वो फ्लोटिंग ग्लास का होता है, जो कि किचन में डालने वाली, जो जैसे चांदी या किसी आम तौर की धातु से स्थापित किया जाता है। अब कांच का जो उपयोगी आम तौर पर इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे क्या है कि उचित, स्पष्ट और कम इसकी एक्यूरेट पिक्चर्स का रिफ्लेक्शन आता है इससे। अब देखो, इसके जो बात करी जाए इसके चमकदार पर्द की, तो वो क्या होता है, जैसे कांच की जो पिछली सतह पर एक पतली पर्द का आवरण होता है, वो पारंपरिक रूप से सिल्वर और जो चमकदार गुण प्रदान करता है, वो आजकल जैसे कि एल्युमिनियम भी है, अधिकतम जो लाभदायक होता है और इसका योग परिधान के रूप में भी यूज़ करते हैं। अब छोटे छोटे मिरर्स का यूज़ देखिए, आजकल ड्रेसेस में भी लोग करते हैं, लहंगे में करते हैं, हैवी ड्रेसेस में भी करते हैं, जो कॉस्टली ड्रेसेस आते हैं उसमें भी मिरर का काम होता है। एक स्टेट ऐसा है जहाँ पर मिरर लगा करके पूरी डिज़ाइन बनाई जाती है, उससे साड़ी भी बनाई जाती है, उससे सूट भी बनाया जाता है। तो समझा जा सकता है मिरर का यूज़ कहाँ नहीं है। अब इसकी जो संरचना है, इसमें जो है ध्यान देने के लिए बात ये है कि ये एक पतली परत के ऊपर एक सामग्री का आवरण किया जाता है, और इससे ध्यान रखा जाता है कि चमकदार तत्वों को नुकसान पहुँचे बिना ये रोका जा सके। अब देखिए इसमें क्या होता है, कांच के जो मिरर के जो इसके प्रकार में, अब जो कांच है वो एक सतह है, उसके पीछे जब सिल्वर या एल्युमिनियम की एक पॉलिश कर दी जाती है, तब जा कर के ये मिरर बन जाता है। ऐसे वो सिंपली ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जब पीछे उसकी सिल्वर की कोडिंग करते हैं या एल्युमिनियम की कोडिंग कर देते हैं, तब वो रिफ्लेक्शन देने लगता है, तब वो बन जाता है मिरर। अब जो ग्लास के जो मिरर होते हैं, इनके भी प्रकार होते हैं, ये भी बहुत टाइप के आते हैं। जैसे कि जो सीधे जो मिरर होते हैं, इनका मापदंड ये होता है कि ये जो मिरर होते हैं असंवेदनशील होते हैं, मतलब इसकी जो रिफ्लेक्शन होता है बहुत ही एक्यूरेट होता है। अब एक होते हैं बेवल्स में किनारों, इसमें क्या होता है कि किनारों पर कोण पर काट दिया जाता है, और असली में सजावट के उद्देश्य के रूप में इनका उपयोग होता है। उनको हेक्सागन टाइप के कट में या स्क्वायर के कट में या उसको वैसे कट में बना देते हैं, लाइक डायमंड कट में करके उसको डेकोरेटिंग पीस में भी बना दिया जाता है मिरर को। अब इसके सुरक्षा मिरर, जैसे इन्हें जो है सुरक्षा बैंकिंग के स्थान जैसे बनाया जाता है, जिसमें कि फटने के बजाय मैंने इसकी सुरक्षा के लिए भी बैंक इन द सेंस कि ये रिफ्लेक्शन दे, कि इसका रिफ्लेक्शन कैसा आ रहा है। कारों में लगाया जाता है मिरर, और सेफ्टी एरियाज़ में मिरर लगाया जाता है, जिससे कि रिफ्लेक्शन पहले से दिख जाए और लोग सेफ हो जाए। अब इसका जो दोहरा मिरर, जैसे इसमें आंशिक रूप से जो चमकदार जो होते हैं, आंशिक पारदर्शी मीन्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, और जो एक तरफ से देखते हैं और दूसरी तरफ से इनको वो कर दिया जाता है, एक लेयर लगा दी जाती है। और लेयर क्या होती है, वो सिल्वर या एल्युमिनियम की लेयर लगाई जाती है, तभी ये रिफ्लेक्ट होता है, नहीं तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास ही रहता है। अब क्या है, इसकी गुणवत्ता की बात करें या इसके उपयोग की बात करें, तो जो मिरर है बहुत ही गुणवान है। इसके जो माध्यम, इसका जैसे कि क्षमता, जो चिकनाई है, चमकदार है, सुंदर सा मिरर है। तो उच्च गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी के जो मिरर रहते हैं वो
महंगे आते हैं, कॉस्टली आते हैं। और जो मिरर की जो चमकदार पर्थ होती है वो बहुत ही सुंदर होती है और उसमें चेहरा देखना बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसके घरेलू सजावट के रूप में भी इसको रखा जाता है और बाथरूम में, ड्रेसिंग रूम में वैज्ञानिक लोग भी, साइंटिस्ट लोग भी मिरर का यूज़ करते हैं। टेलीस्कोप जो होता है, जिसे टेलीस्कोप से साइंटिस्ट लोग सोलर सिस्टम देखते हैं, ग्रहों को देखते हैं। और माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में भी ग्लास लगा होता है, वो मिरर नहीं, ग्लास लगा होता है, बहुत ही फाइन ग्लास होता है, जिससे कि माइक्रोस्कोप में जो बैक्टीरियाज होते हैं और जो वायरस होते हैं उसको बहुत ही क्लियर वे में देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लास। तो माइक्रोस्कोप में भी एक टाइप का ग्लास लगा होता है, जिससे कि माइक्रो माइक्रो मीन्स बैक्टीरियाज एंड वायरस को देखा जाता है विद द हेल्प ऑफ मिरर। अब बात कर ली जाए इसके जो जो आम तौर पर जो इसकी जो वॉल होती है, ये एक वॉल में चिपका दिया जाता है, एक फ्रेम दे दिया जाता है एक डेकोरेटिंग आइटम्स के रूप में, कि इसको एक फ्रेम दे जाता है। कुछ इंटीरियर मैंने ऐसे भी देखे हैं, जो उन लोगों ने एक ब्यूटीफुल हाउस बनाया, उसमें क्या करते, एक जो वॉल होती है ड्राइंग रूम में या एंट्रेंस में या लॉबी में या छोटे से रूम को बड़ा दिखाने के लिए वो लोग पूरी की पूरी एक वॉल जो है वो मिरर प्लेस्ड कर देते हैं विद द डिज़ाइन मिरर्स या प्लेन मिरर्स लाइक दैट, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। तो मिरर का यूज़ भी डेकोरेटिंग आइटम्स में को प्रोजेक्ट करने में भी बनाया जाता है, उसको एज अ डेकोरेटिंग आइटम्स का में भी यूज़ किया जाता है। मिरर का एक फ्रेम दे दिया जाता है उसको। अब देखिए सफाई की बात करें तो इसके जो गंभीर नुकसान से बचाने के इसमें इसको से कॉलिन से साफ करते हैं, जिससे उस मिरर चमक जाता है। यदि घर में कॉलिन नहीं हो तो मिरर को न्यूज़पेपर जो होता है, न्यूज़पेपर में थोड़ा सा पानी डाल लें और पानी डालने के बाद में न्यूज़पेपर से मिरर बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है, जिससे कि फेस बहुत क्लीन दिखता है। अब इसका ऐतिहासिक महत्व की बात करी जाए तो ये अधिकतर माना जाता है कि जो मिरर है चमकदार, जो ऑबस्टीन जैसे धातुओं से बनाया जाता है। अब ये 16वीं शताब्दी में क्या था, वेनिशियंस दैट जो कांच के निर्माता के माने जाते हैं, उनका जो कांच का जो चमकदार धातु की जो परत लगाई जाने लगी थी, तो इससे क्या था कि जो कांच को एक मिरर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया था। एक कांच, सिंपल से कांच को एक लेप लगाने से मतलब एक एल्युमिनियम की लेप लगाने से, सिल्वर की लेप लगाने से एक रिफ्लेक्शन आने लगा था, जिससे कि लोग अपना चेहरा देखने लगे थे और डेकोरेटिंग आइटम्स में भी इसका यूज़ होने लगा था। तो आज मैंने टॉपिक लिया था मिरर का, जिसको बोलते हैं मिरर या ग्लास, इसका टॉपिक लिया था। मैंने सोचा था चलो इसके विषय में भी बात कर दी जाए, तो आज मैंने बात किया मिरर के विषय में, ग्लास के विषय में। आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो खुश होइए, नहीं अच्छा लगा हो तो मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।